کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے مجھے مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ بلاول بھٹو کا بڑا انکشاف سامنے آیا۔ کہتے ہیں وزیر کے ذریعے حکومت نے دھمکی ان تک پہنچائی، فوری انتخابات یا پھر مارشل لاء کی دھمکی دی گئی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا، عمران خان سمجھتا ہے وہ کوئی مقدس گائے ہے، وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیسری قوت کو موقع ملے۔ بلاول بھٹو نے کہا عمران خان نے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا، آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھاڑا گیا۔ اس معاملے پر کیسے یہ ایوان خاموش رہ سکتا ہے؟ آئین شکنی کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لاء ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم نے بھاگتے آئین توڑا، جمہوریت پہ حملہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سب لوگ سابق وزیر اعظم پاکستان جو آئین توڑ رہے ہیں، جو آئین پہ عمل کرنے سے انکار آج تک کر رہے ہیں۔ یہ نیشنل اسمبلی، یہ پارلیمان کیسے اس قسم کے حملے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہمارا تاریخ میں پھاڑا گیا ہے۔ ہمیں ان حملے کو سیریسلی لیتے ہوئے ایک کمیشن بنانا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون ان غیر آئینی، غیر جمہوری کاموں میں ملوث تھے۔ سابق وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائے ہے، اور مقدس گائے بن کر ملک اور قوم، ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے۔ فوراً خان صاحب کے ٹرمز پہ الیکشنز اب ہو، یا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے، جو اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کر رہا 30 سال سے، جناب اسپیکر 4 سال سے نہیں، 30 سال سے ہمارا کان پک چکے ہیں یہ سن کے کرپشن، چور۔ 4 سال حکومت پہ رہ کے ایک چور کو سزا نہیں دلوا سکا، خود چور نکلے۔ میں اپنا پارٹی کا پالیسی اس ہاؤس کے سامنے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر کوئی بجلی چور، آٹا چور اور چینی چور ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے ساتھیوں کو 4 ہفتے میں مہنگائی نظر آنے لگ گئی، مہنگائی کا چورن اب نہیں بکے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی تو کوئی میر جعفر، میر صادق بن گیا۔ اگر فوج کہتی ہے وہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے گی تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ابھی 4 ہفتے پہلے تک تو وزراء جو عمران خان کے تھے وہ پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں۔ اب اچانک 4 ہفتے بعد آپ کو مہنگائی یاد آنا شروع ہو گئی۔ یہ جو چورن اب وہ بیچے گا مہنگائی کا، وہ نہیں بکے گا۔ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جانے دیں عوام میں، یہ جا کے جواب دے لوگوں کو۔ آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ شعبہ فرا خانوں سے بھرا ہوا ملے گا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری نوکریاں کروڑوں روپے لے کے فرا خان نے دے دی۔ اگر کوئی بجلی چور ہے، دوائی چور ہے، آٹا چور ہے، چینی چور ہے تو وہ عمران خان ہے۔ نون اور شین آج بھی یوں ہیں اور انشاءاللہ یوں رہیں گے۔ نون بھی شین ہے اور شین بھی نون ہے۔ ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں، اور الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ یہ صاف سی بات ہے، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے، اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے، اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے، اپنا ادارہ کار تک محدود رکھیں گے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی تو تعریف کی جانی چاہیے۔ تو پاکستان کی افواج کا سربراہ
एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। और जैसे ही इमरान खान की कुर्सी खिसकी, इसको अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, अपना अगला इलेक्शन अपने हाथ से हमेशा के लिए जाता हुआ नजर आ गया, तो आज कोई मीर जाफर बन गया, मीर सादिक बन गया। कौमी असम्बली ने मकबूजा कश्मीर में हदबंदी कमीशन रिपोर्ट और भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारत हुकूमत यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकती। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ हैं। The National Assembly of Pakistan, recalling the resolution of 6th August 2019, adopted unanimously by Parliament of Pakistan and subsequent resolutions of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, deeply alarmed at the situation in IIOJK arising out of the continued Indian occupation in violation of international law and UN Security Council resolutions, expressing grave concern over the series of illegal measures that the Indian occupation forces have been taking to change the demographic composition of the occupied territories in stark violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention and the relevant resolutions of the UN Security Council. Denouncing the latest attempt at demographic engineering in IIOJK through a so-called Delimitation Commission constituted in March 2020 in the occupied territory, aimed at artificially altering the electoral strength of the Muslim majority. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. Although against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. सदर आरिफ अलवी और वफाकी हुकूमत में कशीदगी बरकरार है। चारों सूबों में गवर्नर्स के ओहदे खाली हैं। वज़ीर आज़म के एडवाइस के बावजूद नसरीन जलील, वली खान काकड़, बलीगुर रहमान को गवर्नर बनाने की मंजूरी नहीं दी गई। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा। देखिए, चारों सूबों में गवर्नर के ओहदे जो हैं बदस्तूर खाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हिदायत के बावजूद सदर ने नसीम जलील को गवर्नर सिंध तैनात करने की अभी तक मंजूरी नहीं दी। हिदायत के बावजूद वली खान काकड़ को भी गवर्नर दोस्तान नहीं लगाया जा सका। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया और खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत अभी तक गवर्नर के नाम का तयन भी नहीं कर सकी। पंजाब के अलावा 3 सूबों में सूबाई असम्बली के स्पीकर कायम मकाम के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। पंजाब में परवेज़ इलाही का कायम मकाम करने की जिम्मेदारियां संभालने से इनकार हुआ है और सदर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी न करने पर शहबाज शरीफ दोबारा गवर्नर की तैनाती का एडवाइस जो है वो भिजवाएंगे और सदर ने फिर भी अगर नोटिफिकेशन जारी ना किया तो काबीना डिवीजन नए गवर्नर की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। लेकिन सदर आरिफ अलवी और वफाकी हुकूमत में जो है कशीदगी मुसलसल जो है वो बरकरार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस का मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अदालती फैसले पर नजर सानी की अपील दायर कर दी। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला नजर सानी करते हुए कलअदम करार दिया जाए। तफसीलात जानेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक स्पीकर असद कैसर ने नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं और दरखास्तों में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का जो फैसला है उस पर नजरसानी की जाए और फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जबकि नजरसानी की दरखास्तों में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत करे और इतवार के रोज़ जो अदालत लगाई गई और जो आज खुद नोटिस लिया गया वो एक मुनफरिद था और इससे ये तासुर गया कि किसी मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि आइन में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती आर्टिकल 69 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह आइन में मुदाखलत पार्लियामान की जो कार्रवाई थी
اس میں مداخلت کی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس تھا وہ بھی زیر التوا تھا. صدارتی ریفرنس زیر التوا ہونے کے باوجود آج خود نوٹس لیا گیا جس سے صدارتی ریفرنس آرٹیکل 63A سے متعلق جو تھا وہ غیر مؤثر ہو گیا اور اس کی جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی. تو یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم دیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا، اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت کشگوری آپ کا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اجلاس میں موبائل فونز پر ٹیکس کی کمی کی تجویز دی گئی ہے. سیکرٹری انچارج آئی ٹی کہتے ہیں FBR سے درآمد شدہ فونز پر ٹیکس کم کرنے کا کہا ہے. پاکستان میں موبائل فونز کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبا، بتائے گئے اس حوالے سے. بالکل، سرکاری ویب سائٹ پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے وزارت آئی ٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے. آئندہ کابینہ کے اجلاس میں انٹرنیٹ کے بجائے انٹرا نیٹ اور کیبل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جبکہ اسی حوالے سے NITB نے سائبر حملے کی جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ کابینہ ڈویژن کو بھیج دی ہے. اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا اور اسی اجلاس میں ملک بھر میں سائبر اٹیک کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی. اور سائبر اٹیک کے حوالے سے وفاقی وزیر IT سید امین الحق کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا بھر میں 15 لاکھ سائبر حملے ہوتے ہیں اور سائبر حملے جو ہے مختلف ممالک سے کیے جاتے ہیں. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی سائبر حملے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے اور آئندہ یہ کوشش کی جائے گی کہ یہ سائبر اٹیک جو ہے وہ نہ ہو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا آپ کا. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے. بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، بتائے گا اس تعیناتی کے حوالے سے. دیکھیے، چودھری صالح حسین کو وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. اس ضمن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزیر اعظم دفتر نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جو سرمایہ کاری بورڈ کا دفتر ہے وزیر اعظم دفتر میں، اسی میں ہی چودھری صالح حسین جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر آپ کا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں بجلی کا مسئلہ اٹھا دیا. وفاقی وزیر توانائی نے CO کے الیکٹرک سے آج ہی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر نے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں بجلی کا مسئلہ اٹھا دیا. وفاقی وزیر توانائی نے CO کے الیکٹرک سے آج ہی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. کراچی میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت کے خلاف جماعت اسلامی نے کل شہر کے 100 مقامات پر دھرنے کی کال دے دی. حافظ نعیم الرحمان نے کہ الیکٹرک کے 17 سال کے فورنسک آڈٹ کا بھی مطالبہ کر دیا. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ کراچی میں سینکڑوں مقامات پر احتجاج کریں گے. ہم 100 سے زائد مقامات پر کر احتجاج ہوگا کراچی میں. ہمارا یہ بہت واضح مطالبہ ہے کہ 17 سال کا فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے. فورنسک آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پیپر اس کو ریڈ کیا جائے گا، اس کے پورے ایگریمنٹ کو دیکھا جائے گا، اس ایگریمنٹ کا کمپلائنس کیسے ہوا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. میں اس موقع پر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے الیکٹرک کی مافیا سے، اس پرائیویٹ کمپنی کی مافیا سے کراچی کے عوام کو 42 ارب روپے جو کلا بیگ کے مد کے ملتے ہیں، جو ہمارا حق ہے کراچی کے لوگوں کا، وہ ہمارے بلوں میں واپس ہونے چاہیے. اور اس مافیا نے اب شہر کراچی کو بدترین صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. گرمی بڑھ رہی ہے، لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں. اب اس میں بجلی کے نہ ہونے سے آپ دیکھیں ابھی میٹرک کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں 17 تاریخ سے. کس وقت پڑھیں بچے، کیسے امتحان دیں گے. اب کچھ بات کریں گے موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں شام کے بعد آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے. پنجاب، KP اور بلوچستان میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی. کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے.
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि खित्ता पोटोहार, लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, गुजरावाला, खुशाब और जनूबी मैदानी अजला में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ के साथ हल्की बारिश भी मुतवक्के है। सिंध के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में भी गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दर्जा हरारत में कमी की कोई उम्मीद नहीं है। मज़ीद जानेंगे रुजीना अली से। रुजीना बताएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है, तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी आज दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुम्मा और हफ्ता के रोज़ दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इसी तरह मुल्क के जो दीगर इलाका जात हैं, पंजाब के बेशतर इलाकों में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस कर चुका है और पंजाब के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर दर्जा हरारत जो है जुम्मा और हफ्ता के रोज़ 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और बाज़ इलाकों में 45 से भी क्रॉस कर जाएगा। सिंध के बेशतर इलाके भी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में। इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की शदीद लहर जारी है। इस वक्त सरों पर सूरज चमक रहा है। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप की हिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। और अभी आज शाम तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस्लामाबाद में आज शाम या रात तेज़ हवाएं, गर्द आलूद हवाएं, आंधी और झकड़ चलने की तवक्को की जा रही है और चंद एक इलाकों में बूंदाबांदी की तवक्को भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया रुजीना आपका। शदीद गर्मी ने लाहौरियों के पसीने छुड़वा दिए। 40 डिग्री से ज़ायद की गर्मी शहरियों को नहर पर ले आई। शहरियों ने फैमिलीज के साथ नहर किनारे डेरे डाल दिए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। रुमैल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। रुमैल बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर नहर पर मौजूद हूं, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहां पर मौजूद है। फैमिलीज की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है जो कि घर से खाने पीने का सामान लेकर यहां पर या तो पिकनिक मना रहे हैं और दूसरा गर्मी की शिद्दत को जो है वो इस नहर के पानी में पाँव डुबोकर कम भी कर रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आज लाहौर नहर पर मौजूद है। बच्चे बड़े सभी जो है वो नहर पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ नहर पर आए कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। हम पूरी फैमिली आए हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर में बहुत परेशानी हो रही, बच्चों को भी हमें भी, तो इसलिए हमने सोचा भी चलो नहर पे चलते। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी जो कि नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि आज सुबह से ही 40 डिग्री की गर्मी के साथ जो है वो दिन का आगाज़ हुआ था शहर में, जिसके बायस हमें जो है वो मजबूरन नहर पर आना पड़ा है। तो यहाँ पर जो है वो निकरें किराए पर भी दस्तयाब हैं, जबकि जो फल हैं मौसमी, खासकर जो तरबूज है जो कि नहर में नहाने वालों के लिए खासा मरगूब समझा जाता है, उसकी भी यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं। लोग जो है वो नहर में तरबूज को ठंडा करके उसे भी इंजॉय कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को ठीक है। बहुत शुक्रिया रुमैल आपका। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ, शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी गन्ने का जूस पीने पहुंच गए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर उमर डार से। उमर बताएगा। जी बिल्कुल, गर्मी जो है उसकी शिद्दत इस वक्त अपने अरूज पे है। शहर में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर चुका है और इस गर्मी के मौसम में शहरियों ने मुख्तलिफ मशरूबात की दुकान का रुख किया है। इस वक्त मैं एक गन्ने के रस की दुकान पे मौजूद हूँ। यहाँ पे शहरी ठंडे ठंडे गन्ने के रस के गिलास जो है वो पीने के लिए आ रहे हैं ताकि वो इस गर्मी के मौसम में गर्मी के एहसास को कम कर सके। इस वक्त हमारे साथ ये शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मशरूबात की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये गन्ने का रस बहुत अच्छा है, ये पीना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आपने शहरी की भी गुफ्तगू सुनी। शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पे जो है गन्ने का रस पीने आई है। इसकी कीमत भी जो है बहुत मुनासिब है, 30 रुपये का यहाँ पे गिलास फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गन्ने के रस में नींबू, पुदीना और अदरक भी शामिल की जाती है। तो दूसरी जानिब जो माहिरीन सेहत हैं उन्होंने भी इस शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि जो गर्मी के एहसास को। बहुत शुक्रिया उमर आपका। कराची में सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट का एक और मंसूबा तैयार। रेड लाइन और ऑरेंज लाइन BRTs की 49 बसें बंदरगाह पर उतार दी गईं। ऑरेंज लाइन बस मंसूबे के तहत एक माह में बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया बताएगा।
मेगा सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो है वो तेज़ी के साथ अब आगे की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्रीन लाइन के बाद अब ऑरेंज लाइन भी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और चलने को तैयार है। इसका तकरीबन 85 से 90% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। ऑरेंज लाइन बेसिकली औरंगी टाउन नंबर 5 से नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक जो है वो इसका ट्रैक तामीर किया गया है और ये तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर तवील ट्रैक बनता है। गुज़िश्ता रोज़ 20 बसें जो हैं वो कराची पोर्ट पहुंची हैं ऑरेंज लाइन की और इब्तदाई तौर पर वो जो 20 बसें हैं उन्हें BRT ग्रीन लाइन बस टर्मिनल पर जो है वो स्टे कराया जाएगा, वहाँ पर रोका जाएगा। ये मैट्रिक बोर्ड तक जो है इनका आगाज़ किया जाएगा, लेकिन बाद में इनका मंसूबा जो है वो ये है कि इसको नागन चौरंगी तक लेकर जाना है। जैसे ये ट्रैक ग्रीन लाइन के साथ कनेक्ट होगा तो फिर ग्रीन लाइन के स्टेशंस को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। टेस्टिंग के बाद फिर इसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा कि किस तरीके से इसको बसेस को कहाँ तक और कैसे चलाना है, लेकिन टेस्टिंग इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक होगी। ये जो 20 बसें हैं ये पहुंच चुकी हैं और कराची वालों के लिए डेफिनेटली एक बड़ी खबर है कि मजीद 20 बसें आने से ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई मसला जो है किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत हल होने जरूर जा रहा है। बहुत शुक्रिया आदिया आपका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बंदरगाह पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने बसें कराची पहुंचने पर मुबारकबाद दी। कहते हैं चंद सालों में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। रेड लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत के ताउन से तामीर किया जाएगा। दोस्तों को, बहनों को, बुजुर्गों को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इनिशिएटिव के बाद कराची में बसेस जो हैं वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली फ्लीट इस वक्त पहुंची है जिसमें जो पीपल्स बस सर्विस की है, जिसमें 240 बसेस पहले फेज में आनी थी, उसमें से 49 पहुंच गई हैं और नेक्स्ट वीक और मज़ीद बसें आएंगी। जो कंप्लीट फ्लीट है वो 20 जून तक जो है इंशाल्लाह वो कराची में आ जाएगी। तो उसके बाद 240 बसें जो है फर्स्ट फेज की वो आना शुरू हो जाएंगी। इसी फ्लीट के साथ साथ ऑरेंज लाइन जो BRT जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कहा जाता है उसकी कंप्लीट फ्लीट आ चुकी है। उसकी 20 बसेज हैं जो वो भी पहुंच चुकी हैं ऑरेंज लाइन की, और ये बसेज भी जो ट्रैक जो है उसका काम रेडी है। ये बसेज अभी जैसे आएंगी पोर्ट से क्लियर होंगी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और उसके बाद जो है जो पीपल्स बस सर्विस है वो फौरी शुरू कर दी जाएगी। ऑरेंज लाइन जो है उसमें जैसे ट्रैक कंप्लीट होने जैसे होगा तो उसके बाद वो शुरू होगी। ये जितने भी है ये पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कराची के जो शहरी हैं उनका ये बहुत देरीना एक उनकी ज़रूरत थी, उसको पूरा किया गया है। और इसमें खुसूसी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम जितने भी थे और ख़ास तौर पर जो मिनिस्टर थे अविज शाह साहब, इन सब की खुसूसी काविशों से ये चीज़ मुमकिन हुई है। और इंशाल्लाह ताला ये हम कराची के शहरियों को बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ फ्लीट यहाँ तक रुकेंगी नहीं, और जो इस वक्त टारगेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने दिया है, ये तादाद हज़ारों में होगी। तो इंशाल्लाह ताला कराची के शहरी अच्छी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे, कराची के शहरी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी यही है कि शहरियों को जो बेहतर से बेहतर सहूलत वो फराहम की जाए, और इसमें ये जो भी ताउन किया जा रहा है इसमें वो गवर्नमेंट हर वक्त पेश है, और गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करें। और उसके बाद एक और चीज़ कहना चाहूँ कि ये सिर्फ कराची का तक महदूद नहीं है, 10 बसेस जो हैं वो लाड़काना के लिए वो भी आ रही हैं, और उसके बाद पूरे सिंध के लिए, सिंध के देही इलाकों में भी और शहरी इलाकों के लिए भी बड़ी मेगा स्कीम्स ट्रांसपोर्ट की जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत के रेड लाइन बस मंसूबे को सराहा है और खुशी का इजहार किया है। शहरी कहते हैं मंसूबे से ट्रैफिक जैम और सफ़र में आसानी होगी। शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन है। हो तो अच्छा है, हमारे लिए आवाम के लिए बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आवाम तो दुआएं देगी सिंध हुकूमत को, असर है। मैं तो दुआ करूँगा इंशाल्लाह, पर आवाम की दुआएं हो जाए, 1 साल के अंदर हो जाए। अगर कोशिश करें तो 15 माह में हो जाएगा। इस तरह के मंसूबे मैं कराची के लिए बहुत बेहतर देखता हूँ, पाकिस्तान और कराची के लिए बेहतर है, क्योंकि ये मंसूबा जब बनेगा, देखें ये नीपा से लेके पीछे ये कहाँ तक पीछे बना, टैंक चौ तक, कोई भी ऐसी यानी कि ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दें, क्योंकि ये जो मंसूबा बन रहा है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतर मंसूबा सहूलत है, फ़ायदा है, आवाम के लिए बहुत अच्छी फ़ायदा है और होना चाहिए। हम खुश हैं इस बात के कि ये चीज़ होना चाहिए, हमारा हक है
सयन कराची वालों का हक भी बनता है, वो ट्रांसपोर्ट पब्लिक भी ज़्यादा है, आवाम भी ज़्यादा है, ये होना चाहिए। हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की। फ़ायदा हो गया, इसमें किराया भी कम हो गया, वो सुकून से बैठे हुए, इसमें रश भी नहीं होगी, इसमें जेब कटू भी नहीं होगी, जो सुकून से हो। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके के बाद इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। मेन गेट पर रेंजर्स की नफरी तैनात कर दी गई है। यूनिवर्सिटी आने वाले तलबा को चेकिंग के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजार कर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद फेरोज से, जो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। जुनेद, बताएगा इंतजामात के हवाले से। 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिल्वर जुबली गेट के बाहर जो है वो वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं, जिससे गुजर कर ही तलबा और तालिबात को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त सिल्वर जुबली गेट के बाहर ही मौजूद हूँ। मेरा कम आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की भारी नफरी जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ हर आने जाने वालों की बाकायदा तौर पर चेकिंग की जा रही है। कार्ड जो यूनिवर्सिटी का है वो चेक किया जा रहा है, जिसके बाद वॉक थ्रू गेट से गुजर कर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये मर्द हजरात के जो है वो कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनका जो है वो बैग जो है वो चेक किया जा रहा है, जबकि वॉक थ्रू गेट से गुजर कर जो खवातीन हैं वो रिसर्चर खड़ी हुई हैं, जो वालिदैन हैं वो भी परेशान हैं और उनकी गाड़ियाँ जो है कराची यूनिवर्सिटी से बिल्कुल बाहर जो है वो मेन रोड पर जो है वो लगा दी गई हैं। किसी को अंदर जाने की जो इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी इंतजामात जो खुदकुश हमला हुआ उसके बाद जो है वो काफ़ी सख्त यूनिवर्सिटी के कर दिए गए हैं, जिस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। पानी की कमी पर 15 जून तक काबू पा लेंगे। तरबेला डैम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोशिश है तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। सिंध और चौलिस्तान में पानी के मसले से मुतालिक इकदाम कर रहे हैं। ये हकीकत है कि पानी की शॉर्टेज है कि इंशाल्लाह 15 जून तक हम पानी के पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह ताला। पानी है सिंध में भी, जो खास करके या चोलिस्तान की बात की गई, बिल्कुल वो भी टेल पे है और उसका मसला है। आज जो टेम्परेचर है स्कर्दू में वो तकरीबन 27-28% पे चला गया है और ये 6-7 दिन कंटिन्यू चला तो यकीनन हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि तरबेला से जब पानी सक्खर तक, गुड्डू तक, हैदराबाद तक पहुंचता है तो हैदराबाद तक तो वो 20 से 22 दिन लेता है, मगर सक्खर तक 15 दिन लेता है, गुड्डू तक। इस तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग है। तब मैंने 15-30 तारीख की बात की है।